Hello dear students, today we are going to discuss on the performance of wind energy systems. In this particular topic, we are going to discuss on the wind power parameters. What are the different parameters which are involved in the performance of the wind energy systems? This is the basically lecture number 16 of unit 3. In this particular slide, you are seeing the wind turbine configuration. Most of the modern large wind turbines are horizontal axis turbine having 3 blades. As you already seeing in this particular slide, here blades are not shown but other complete details are given, such as hub, nacelle, main shaft, gearbox, coupling, control panel, wind vane, mainframe, generator, yaw deck, tower, yaw control, main bearing, pitch control. Basically the motive behind to see this figure is that what are the different components in the wind turbine. Now come to the point. A wind turbine is comprised of a nacelle which is positioned on the top of wind tower, housing the most turbine components inside. 3 blades, as it is not shown on figure, mounted on the rotor hub, which is connected via the main shaft to the gearbox. मेन शाफ्ट मतलब ये हुआ कि जो आपकी ब्लेड्स हैं वो एक तरफ 3 ब्लेड्स लगी रहती हैं और दूसरी तरफ वो जाके गियर बॉक्स से कनेक्ट रहता है. The rotor of the wind generator is connected to the output shaft of the gearbox. Thus, the slow rotating speed of the rotor hub is increased to the desired high rotating speed of the generator rotor. ये बेसिकली थ्रू होता है गियर बॉक्स के, क्योंकि जो विंड मिल की स्पीड कम होती है लेकिन हमको जो जनरेटर तक स्पीड पहुंचानी है वो ज़्यादा स्पीड पहुंचानी है, तो हम बीच में गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं. Using the pitch control system, each blade is pitched individually to optimize the angle of attack of the blade for allowing a higher energy capture in normal operation and for protecting the turbine components such as blade, tower, etc. from damaging in emergency situations. And what are these emergency situations? High wind speed are the main constraint. With the feedback information such as measured instantaneously wind direction and speed from the wind vane, the yaw control system provides the yaw orientation control for ensuring the turbine constantly against the turbine. yaw ओरिएंटेशन के थ्रू ही विंड मिल का ओरिएंटेशन सेट होता है. नाउ कम टू द wind power parameters. For discussing the different parameters, we are going to discuss the first point, that is power coefficient. The conversion of wind energy to electrical energy involves primarily in 2 stages. In first stage, the kinetic energy in wind is converted into mechanical energy to drive the shaft of a wind generator. जो wind है उसका एक particular velocity है and that kinetic energy is converted into mechanical energy by the shaft. Wind एक particular pressure से जब blades पर टकराती है तो blades की घूमने से शाफ्ट भी घूमती है. द क्रिटिकल कन्वर्टिंग डिवाइस इन दिस स्टेज आर विंड ब्लेड्स. जैसा मैंने आपको बताया, मेन जो स्पीड को रोटेशन में कन्वर्ट करेगी या वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी को रोटेशन में कन्वर्ट करती है, दैट इज़ द मेन थिंग इज ब्लेड.
For maximizing the capture of wind energy, wind blades need to be carefully designed. यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो विंड वेलोसिटी होती है जब विंड आके ब्लेड्स पर टकराती है तो दैट हैज़ टू बी ऑप्टिमाइजली यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ दैट विंड एनर्जी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जो भी विंड वेलोसिटी है उसको आपने केयरफुली ऑप्टिमाइज़ करना है और उसको मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसीलिए विंड ब्लेड्स के डिज़ाइन एक ही बहुत ही क्रिटिकल और केयरफुली की जाती है. The power coefficient Cp deals with the converting efficiency in the first stage. It is defined as the ratio of actually captured mechanical power by blades to the available power in the wind. कहने का मतलब ये है कि जो विंड आपकी ब्लेड से टकरा रही है उसमें कितना पावर अवेलेबल था, विंड पावर, और उसके बाद रोटेशन में कन्वर्ट होने में जो हमको मैकेनिकल पावर मिला वो कितना मिला, तो इसका जो रेशो होता है Cp इज इक्वल्स टू पावर Me मतलब मैकेनिकली आउटपुट डिवाइडेड बाई Pw. ये फॉर्मूला है. बिकॉज देयर आर वेरियस एरोडायनामिक लॉसेस इन विंड टर्बाइन सिस्टम्स. फॉर इंस्टेंस ब्लेड टिप, ब्लेड रूट प्रोफाइल, ब्लेड प्रोफाइल and wake rotation losses etc. The real power coefficient Cp is much lower than its theoretical limit, which is usually in ranging from 30 to 45%. तो पावर कोफिशिएंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये वो कोफिशिएंट है कि एक्चुअल विंड में कितनी पावर थी और हम कितना पावर उसका यूटिलाइज कर पाए ब्लेड्स के थ्रू मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना. ये इम्पॉर्टेंट कोफिशिएंट है. अब देखते हैं टोटल पावर कन्वर्जन कोफिशिएंट एंड इफेक्टिव पावर आउटपुट. फर्स्ट स्टेज में तो आपने क्या किया कि जो विंड की वेलोसिटी थी वो विंड जाके ब्लेड से टकराई और मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हुआ. सेकंड स्टेज में क्या होता है अब देखते हैं अपन. मैकेनिकल एनर्जी कैप्चर्ड बाय विंड ब्लेड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया विंड जनरेटर्स. क्योंकि ब्लेड जब घूम गई तो ये मैकेनिकल पावर इज डायरेक्टली कपल्ड टू द इलेक्ट्रिकल विंड जनरेटर. In this particular stage, the converting efficiency is determined by several parameters. इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी हमको एनालिसिस करनी पड़ती है. पहला है जैसे गियर बॉक्स एफिशिएंसी. The power losses in a gearbox can be classified as load dependent and low load power losses. The load dependent losses consist of gear tooth friction and bearing losses, and no load losses consist of oil churning, windage and shaft seal losses. जैसा इन्होंने कहा इसमें ये लॉसेस के क्या क्या पार्ट होते हैं. गियर टूथ फ्रिक्शन, जो आपस में गियर के टीथ हैं उसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. बियरिंग लॉसेस सेम चीज़, लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 100% होगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा लॉस होता ही है, तो हम उसको मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं. ऑयल चर्निंग, विंडेज मतलब जो एयर के फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होते हैं उसको विंडेज लॉसेस बोलते हैं. एंड शाफ्ट सील लॉसेस, तो ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं गियर बॉक्स की एफिशिएंसी में. इसको नीटा गियर बोलते हैं हम. द प्लैनेटरी गियर बॉक्स which are widely used in wind turbines have higher power transmission efficiencies over traditional gearbox.
इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल गियर बॉक्स, प्लैनेटरी गियर बॉक्सेस का हम वाइडली यूज़ किया जाता है विंड टर्बाइंस में। अगला जो पॉइंट आता है जनरेटर एफिशिएंसी, नीटा जेन, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लॉसेस इन विंड जनरेटर सच एज कॉपर, आयरन, लोड, विंडेज, फ्रिक्शन एंड अदर मिसलेनियस लॉसेस। Next, electric efficiency, that is NETA it encompasses all the combined electric power losses in the converter. वो सारे losses जो electrical power losses जो power convert हो रहा है उसमें, जैसे कि switches, controls and cables, इन सारी चीज़ों में जो सारे लॉसेस होते हैं उसको जो कंसीडर करके जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। देयरफॉर द टोटल पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी फ्रॉम विंड टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नीटा टी, इज द प्रोडक्शन ऑफ दीज पैरामीटर्स। सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नीटा टी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू नीटा गेयर इंटू नीटा जनरेटर इंटू नीटा इलेक्ट्रिकल। द इफेक्टिव पावर आउटपुट फ्रॉम अ विंड टर्बाइन टू फीड इंटू अ ग्रिड बिकम्स पी इफेक्टिव सी पी इंटू नीटा गेयर इंटू नीटा जनरेटर इंटू नीटा इलेक्ट्रिक इंटू पी डब्ल्यू। ये हमारा टोटल फार्मूला बनता है इफ़ेक्टिव एफिशिएंसी का, जब ब्लेड्स पे जो विंड टकराती है वहाँ से लेके हमको फाइनल इलेक्ट्रिकल पावर जो मिलती है। नाउ कम टू द बेड्स लिमिट। लैनचेस्टर बेड्स लिमिट, इसका नाम क्यों दिया गया है ये भी बात करते हैं अपन। द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ an ideal wind turbo machine was derived by Lanchester in 1950 and Betts in 1920। ये दो लोगों ने मिलके मैक्सिमम एफिशिएंसी आइडियल मशीन की जब निकाली तो उसमें ये दो चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। It was revealed that no wind turbo machine could convert more than 59.26% of the kinetic energy of the wind into mechanical energy. This is known as the Lanchester-Betts limit or Lanchester-Betts law. यहाँ पर हम देख रहे हैं एयर फ्लो थ्रू अ विंड टर्बाइन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। U1 एंड U4 आर द मीन वेलोसिटीज फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द विंड टर्बाइन। अपस्ट्रीम मतलब जो विंड मिल का इनलेट है और डाउनस्ट्रीम मतलब जो आउटलेट है। U2 and U3 are mean velocities just in front and back of the wind rotating blades. Blades के पहले की बात कर रहे हैं, that is upstream, और blades से जब wind पास होके पीछे जाती है तो वो कहलाती है downstream। तो ये दोनों आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आगे चलते हैं। By assuming that there is no change in the air velocity right across the wind blades, that is U2 is equals to U3 and the pressure far upstream and downstream from the wind turbines are equal to the static pressure of the undisturbed air flow, that is P1 is equals to P4 is equals to P. Thus the power output of mechanical energy captured by wind turbine blades is P mechanical out, जो हमको मिलेगा
वो 1/2 रो इंटू ए U2 ब्रैकेट में U1 स्क्वायर माइनस U4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि वन आगे चल के ये हो जाता है where A is the axial induction factor which is defined as, यदि A की जगह हम U1 माइनस U2 अपॉन U1 रख देते हैं तो फाइनल हमको जो कोफिशिएंट मिलता है यहाँ पर उसको पुट द वैल्यू ऑफ P मैकेनिकल आउटपुट इनटू CP वेयर U1 इज इक्वल्स टू U2, जहाँ CP इज इक्वल्स टू हमने ऊपर देखा था P मैकेनिकल ME आउटपुट अपॉन PW, तो यहाँ जब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये CP इज इक्वल्स टू हमको मिल जाता है 4A ब्रैकेट में 1 माइनस A स्क्वायर. दिस इंडिकेट्स दैट द पावर कोफिशिएंट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्सियल इंडक्शन फैक्टर A. It is easy to derive the maximum power coefficient reaches its maximum value of 16/27, that is A is equals to 1/3 as in figure. ये फिगर इसमें देख रहे हो आप पावर कोफिशिएंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्सियल इंडक्शन फैक्टर A. तो यहाँ ऊपर हमने देखा था कि जो 59.26 लिमिट आती है उसके लिए डिटेल्स है ये. अब अगला बात करते हैं अपन पावर कर्व. पीछे हमने देखा था एक इक्वेशन एफिशिएंसी का, उसके बाद इफेक्टिव पावर दैट इज इक्वल टू CP इंटू नीटा गेयर इंटू नीटा जनरेटर इंटू नीटा इलेक्ट्रिकल मल्टीप्लाइड बाई PW. The effective electrical power output from a wind turbine P effective is directly proportional to the available wind power, that is PW, and the total effective wind turbine efficiency. मतलब जो total efficiency है इफेक्टिव, उसमें आपको दो चीज़ कंसीडर की जा रही हैं कि पहला विंड पावर कितना अवेलेबल था एंड टोटल इफेक्टिव विंड टर्बाइन, और विंड जब वो विंड पावर जाके ब्लेड से टकराया तो उसके बाद जो हमारे विंड टरबाइन ने उसको कन्वर्ट किया, दैट इज द इफेक्टिव विंड टरबाइन एफिशिएंसी T. द पावर कर्व ऑफ ए विंड टरबाइन डिस्प्लेस द पावर आउटपुट आइदर रियल इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट और परसेंटेज ऑफ द रेटेड पावर ऑफ द टरबाइन इज एज ए फंक्शन ऑफ मीन विंड स्पीड. यहाँ पर हम देख रहे हैं पावर कर्व आर यूजुअली डिटरमाइंड फ्रॉम द फील्ड मेजरमेंट एज शोन इन फिगर. ये टिपिकल विंड टरबाइन पावर कर्व है जिसमें आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे जो विंड स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और जो वाई एक्सिस पे है वो परसेंटेज पावर आउटपुट है, दैट इज द रेटेड परसेंटेज ऑफ रेटेड आउटपुट. तो ये कर्व में आप देखिए पहले ज़ीरो से थोड़ा आगे जाके स्टार्ट हो रहा है, फिर रेटेड स्पीड तक जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है. यहाँ दो चीज़ें आपको दिख रही है, एक है कट इन स्पीड और दूसरा है कट आउट स्पीड. ये दोनों स्पीड के बीच में जो आता है रेटेड स्पीड, जिसमें कि आपका मैक्सिमम पावर हमको जो मिलता है. तो यहाँ हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, बात करेंगे. The wind turbine starts to produce usable power at a low wind speed which is defined as cut in speed. विंड टरबाइन घूम रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पावर जनरेट हो ही रहा है. उसका यूजेबल पावर जब बनना स्टार्ट होता है और दैट पर्टिकुलर स्पीड को हम बोलते हैं कट इन स्पीड. The power output increases continuously with the increase of the wind speed until reaching a saturated point, to which the power output reaches its maximum value defined as the rated power output. Cut in speed के बाद पावर जनरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब विंड टरबाइन is now
giving proper input to the generator so that electrical energy is now started. Correspondingly, the speed at this point is defined as the rated speed. At the rated speed, more increase in the wind speed will not increase the power output due to activation of power controller. मतलब ये हो गया कि कट इन स्पीड के बाद एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वहाँ तक ही आपका पावर जनरेट होता है. उसके बाद यदि विंड स्पीड ज़्यादा भी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा पावर कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है और उसकी स्पीड को वहीं रखने की कोशिश करता है. और यदि इन केस दैट स्पीड इज़ नॉट टू बी कंट्रोल्ड, देन डेफिनेटली एमरजेंसी कंडीशन आ जाती है. तो ये कट इन स्पीड के बाद जो रेटेड स्पीड तक की बात है, उतने ही स्लॉट में हमारा पावर जनरेट होता है और वही हमारे लिए यूज़फुल है. तो यहाँ अभी ऊपर आपने देखा था ये कट इन स्पीड एंड कट आउट स्पीड और रेटेड स्पीड. ये जो कट इन स्पीड से रेटेड स्पीड जो है, यहीं तक ही हमको पावर मिलती है और रेटेड स्पीड के बाद नहीं आना चाहिए स्पीड, नहीं तो फिर वो पावर कंट्रोल में चली जाती है और हमको फिर इमरजेंसी सिचुएशंस के कारण दूसरे जो इमरजेंसी एक्टिवेशंस हैं वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं. At the rated speed, more increase in the wind speed will not increase the power output due to activation of power control. When the wind speed becomes too large to potentially damage the wind turbine, जैसा मैंने आपको बताया कि कट आउट स्पीड पर आ जाती है ये बात, the wind turbine needs to shut down immediately to avoid damaging the wind turbine. This wind speed is defined as the cutout speed. जैसा मैंने आपको बताया था कि कट इन स्पीड से रेटेड स्पीड तक ही पावर जनरेट होता है, लेकिन यदि उसके बाद ये पर्टिकुलरली कट आउट स्पीड तक आ जाता है तो देयर में बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग द विंड टर्बाइन, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है. Thus, the cut in and cut out speeds have defined the operating limits of the wind turbine. कट आउट स्पीड के बीच में ही हमको विंड टर्बाइन को ऑपरेट करना है, तभी हमारा पावर ऑप्टिमाइज पावर हमको मिलेगा. अब दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम बात करेंगे. उसके बाद इन दोनों डेफिनेशंस के बाद क्या क्या डिस्कस करना है वो बाद में देखेंगे. नाउ द पॉइंट कम टिप स्पीड रेशो. बेसिकली इट इज़ द रेशो इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ इन विंड टर्बाइन डिज़ाइन. डिज़ाइन के वक्त ये रेशो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस वक्त डिज़ाइनिंग के वक्त इसको मेजरली कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. विच इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्पीड एट द ब्लेड टिप टू द एक्चुअल विंड स्पीड. मतलब टिप पर क्या स्पीड अवेलेबल थी और एक्चुअल विंड स्पीड हमको टरबाइन की कितनी मिली. द लार्जर दिस रेशो द फास्टर द रोटेशन ऑफ द विंड टरबाइन रोटर एट ए गिवन विंड स्पीड. Electricity generation requires high rotational speeds. Lift type wind turbines have maximum tip speed ratio of around 10, while drag type ratios are approximately 1. तो ये विंड स्पीड रेशो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखा और इसकी क्या डेफिनेशन होती है वो भी देखी. नेक्स्ट thing is wind turbine capacity factor. Due to intermittent nature of wind turbines do not make power all the time. कहने का मतलब ये है कि ये इंटरमिटेंट नेचर होता है क्योंकि एयर की वेलोसिटी या विंड की वेलोसिटी हमेशा एक सी नहीं रहती है. तो ये इंटरमिटेंट मतलब कभी है कभी नहीं है, रुक रुक के.
इसीलिए विंड टर्बाइंस कांस्टेंट पावर के लिए या बेस लोड प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं की जाती। Thus, a capacity factor of a wind turbine is used to provide a measure of the wind turbine's actual power output in a given period. Yearly अपन देखते हैं तो divided by its power output if the turbine has operated the entire time. A reasonable capacity factor would be 0.25 to 0.30 and a very good capacity factor would be around 0.4. In fact, wind turbines capacity factor is very sensitive to the average wind speed. Average speed मतलब ये हुआ कि ऐसा ना हो कि हमेशा कभी विंड बहुत स्लो है, वेलोसिटी कम है और कभी बहुत ज़्यादा है। तो ये फैक्टर ज़्यादा तभी होता है जब हमारे एवरेज वेलोसिटी के आसपास ही जो रेटेड वेलोसिटी होनी चाहिए और हमारी जो विंड की एवरेज वेलोसिटी है वो करीब करीब यदि समान रहती है तो हमको पावर जो है थ्रू आउट द ईयर मिलता है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स देखे। तो ये जो लेक्चर पर्टिकुलरली था ये परफॉर्मेंस पे था। तो हमने इस परफॉर्मेंस वाले लेक्चर में पहले डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा और ये कोशिश की कि ये पैरामीटर्स क्या हैं और इनका इम्पैक्ट क्या आता है पावर जनरेशन पे। तो अगले चैप्टर्स में लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि इन पैरामीटर्स का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो पहले हमको इस लेक्चर में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स की स्टडी की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू।